Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis, where we are going to look at the most important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. There would be a small change for today because we are not able to do a studio recording, but tomorrow again we are going to meet online only. Okay, so let's look at the news for today. But before I begin with the news for today, let's look at the comment box. So the first comment was is from the billionaire biography 995 So he or she has asked, "Sir, please explain in brief about Operation Parakram." So this question comes up from our previous class discussion, which was regarding the Kandahar hijack. So in the Kandahar hijack, one of the demand of hijacker was to release the only demand of the hijacker was to release three particular terrorists who were in Indian captivity, and one of those person was Maulana Masood Azhar. So this was one of the dreaded terrorists which was in Indian jail, and this was one of the demand of the terrorist to release this particular person. And this particular person, after his release, actually created a very threatening, a very dangerous terrorist organization, which is known by the name of Jaish-e-Mohammed. Jaish-e-Mohammed. And this particular Jaise Muhammad basically means Muhammad ki army, Muhammad, Prophet Muhammad's army. That is the literal meaning of Jaise Muhammad. So he created this Jaise Muhammad, and this Jaise Muhammad later on, this was created in 2000. Your Kandahar hijack took place in the year 99. Your Jaise Muhammad was in 2000, and very soon in the year of 2001, this Jaise Muhammad JEM was responsible for carrying on the most dreaded attack on the Indian Parliament, on the symbol of India's democracy. Okay, so Indian Parliament is the symbol of Indian democracy, and in 2001, in the month of December, they actually 13 December 2001, they actually attacked Indian Parliament. A month ago, there was a trailer also this particular attack because a particular terrorist group actually attacked your Jammu and Kashmir Legislative Assembly, but it is believed that India did not learn anything from these particular events, and our security was still very poor. And because of this, in the December of 2001, JEM or Jaish e Mohammed was able to target your Indian Parliament. Okay, so five terrorists targeted, but all five were killed. But some of our police officers, very brave police officers who were there to protect the Indian Parliament, also died in this particular attack. Okay, so in response to this particular Indian Parliament attack, your Indian government asked all your armed forces, Indian government all asked all its armed forces together at LOC, line of control, and basically your international border, which is between India and Pakistan. So this particular stalemate, so also because the Indian government openly said asked its armed forces together at the LOC and the Indian Pakistan international border, the Pakistan government also did the same, and kind of a stalemate was being reached, and many Western countries, because by this particular time both India and Pakistan had become nuclear powers, and if we never know if the fight would have if this war would have started, we might have even started to use your nuclear weapons also. So because of this, your US, UK, China, Russia, everyone got involved, and finally we did not carry on with this particular war strategy. And this particular operation of collecting our armed forces together, our armed forces at the border, was known as Operation Parakram. This was known as Operation Parakram. Okay, so this is the small history of your operation. Okay. So let's move to the next particular comment, which is from Pranav Singh Rajawar. So Pranav has been very active in the comment box. He has always answered all the questions, and all of them have also been answered correctly. So इन्होंने पहला आंसर दिया that the current NSA. So yesterday I asked you who is the current national security advisor, and also I in addition I also asked कि आपका पहला national security advisor कौन था. So the current national security advisor is your Ajit Doval,
And your first national security advisor, which when this particular post was created in the year 99, it was your Rajesh Mishra. Okay, so this particular NSA, first NSA, National Security Advisor, was Rajesh Mishra, and this particular post was created in the year 99. Okay, and the current is Ajit Doval. Ajit Doval, interestingly, is also the longest serving NSA. So no NSA had a longer tenure as long as of Ajit Doval. Second, another question which I asked you. So we discussed your World Heritage Site in India. We have around 43 World Heritage Sites. The 43rd, the latest one, was also announced recently in Delhi only by the 46th session of World Heritage Committee. And I asked you that out of these 43, we only have one mixed World Heritage Site, which is basically a mix of natural and your cultural heritage sites. Okay, and the only example is your Kanchenjunga National Park, which is the national park of Sikkim. Okay. Also, I asked you the first law commission, which was created in the year 1834, and it was headed by Lord Macaulay, under which law of British Parliament this particular law commission was enacted or was made. It was the Charter Act. It was the Charter Act of 1833. It is Charter Act of 1833, under which this particular law commission was created. Okay. So these are some answers. So Pranav has answered all of the questions which I asked you in my previous class. Okay. So this Charter Act 1833 is important for us for this year exam. Okay. Read with Mahi. Ajit Doval is current NSA. Yes, also the longest serving NSA. So she has also enlightened us with some extra information. And first NSA was Brajesh Mishra in 99. Okay. Yes. Yes, Mahi. All of the answers are correct. Star BH2TR is first NSA Brijesh Mishra and current NSA Ajit Doval. Again, a correct answer. Harleen Tour UB7EU, one mixed World Heritage Site, Kanchenjunga National Park. So in Assam. So okay, so she has mentioned Assam, which is wrong. Not Assam, but Kanchenjunga is in Sikkim. Harleen, please, if you are watching this video, please make this correction. Kanchenjunga is not in Assam, it is in Sikkim. Okay. Moving on to the next page, Aditi Mishra, current NSA Ajit Doval, first NSA Brajesh Mishra. Kinjal Sharma, current NSA Mr. Ajit Doval, and first NSA Mr. Brajesh Mishra. Krish Rathore 6515, one mixed World Heritage Site, Kanchenjunga National Park, again Assam, not in Assam, it is in Sikkim, please. Present NSA Ajit Doval, first NSA Brajesh Mishra. Sir, can you tell what is net national product at factor cost? Okay, yes, we are going to discuss that also. Let me look at the last comment also first. Vedika Verma, present NSA, and first NSA was Brajesh Mishra. So all of you are now aware that the first National Security Advisor was Brajesh Mishra in the year 99 itself. Present NSA is Ajit Doval, okay, and your only mixed World Heritage Site of India, Kanchenjunga, is Kanchenjunga National Park or Biosphere Reserve also in Sikkim, located in the state of Sikkim. Okay, so these were the questions which I asked you from our previous class. Now let's understand what exactly is. So Krish Rathore is, sir, can you tell what is net national product at factor cost? So I'll make you understand this thing one by one. So we'll start with GDP. So GDP is basically your gross domestic product. Okay. So GDP आपको क्या शो करता है? Basically shows the total income, total production in economy. Total production इन इकोनॉमी एंड बिकॉज डोमेस्टिक वर्ड यूज है यहाँ पे इसका मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन इन डोमेस्टिक टेरिटरी ओके सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेसिकली टोटल प्रोडक्शन इज डोमेस्टिक टेरिटरी यानी इंडियन टेरिटरी के अंदर में चाहे इंडियन हो या फॉरनर हो उन दोनों ने इंडियंस प्लस फॉरनर्स दोनों ने क्या अर्निंग करी है सब कुछ ही जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया है इंडिया में एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ योर जीडीपी ओके एंड and your gross here shows that we are not subtracting the depreciation in the production value okay so जो लेसनिंग ऑफ वैल्यू होता है जब भी आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली यूज करते रहते हो उस वैल्यू को मैंने रिड्यूस नहीं करा है दैट्स व्हाई द ग्रॉस की मैंने सब कुछ ऐड कर दिया मैंने कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया है तो ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब जीडीपी से अगर मुझे जीएनपी पे आना हो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ना सो इट्स वेरी इजी नेशनल का मतलब है कि आप यहाँ पे एक देशवादी बन चुके हो एक नेशनलिस्ट बन चुके हो
ठीक है, सो यू आर ओनली कंसर्न अबाउट द प्रोडक्शन और द ग्रोथ डन बाय इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन जो इंडिया में है और फॉरेनर में है, फॉरेन में है, सिर्फ उनकी ही हम वैल्यू ऐड करते हैं। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा प्रोडक्शन ग्रॉस प्रोडक्शन बाय इंडियन सिटीजन, बाय इंडियन सिटीजन। ठीक है, या तो इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड, प्लस अब्रॉड। तो जीएनपी में मैं क्या कर रहा हूँ, नेशनल प्रोडक्ट के अंदर में मैं टोटल प्रोडक्शन देख रहा हूँ बाय इंडियन सिटीजन, चाहे वो इंडिया में कर रहे हैं या आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, और इंडिया में वो पैसा भेजा जा रहा है, ऑब्वियसली ये हम उसमें कंसर्न करेंगे ही। बट एट द सेम टाइम जीडीपी में से अगर मैं जीएनपी निकाल रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई हैव टू सबट्रैक्ट व्हाट प्रोडक्शन डन बाय फॉरेन कंपनीज और फॉरेनर्स इनसाइड इंडिया, एंड दैट मनी दे आर गोइंग टू टेक आउट आउटसाइड इंडिया। फॉर एग्जाम्पल पैप्सी, आपकी मैकडी, और जो बड़ी बड़ी आपकी फॉर्म्स है, फॉरेन कंपनीज है, एमएनसीज हैं, इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, बट फाइनली अपने प्रॉफिट को अपने ओरिजिन कंट्री में, अपने पेरेंट कंट्री में लेके जाएंगे, तो उसको हम ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो ये तो हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होता है आपको ग्रॉस से नेट पे कैसे आ जाता है। तो ग्रॉस में से अगर मैं डेप्रीसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, कि जो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट है, तो मुझे नेट वैल्यू मिल जाती है। तो सिंपली अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अगर मैं हर चीज की जो वैल्यू ईयर ऑन ईयर डिक्रीज होती जा रही है, बट वो मैंने आज भी इकोनॉमी में उसको ऐड करता जा रहा हूँ, तो उस चीज को मेरे को उस वैल्यू को रिड्यूस हटाने के लिए, उसमें जो वैल्यू में कमी आई है उसको हटाने के लिए मैं इसमें से डेप्रिशिएशन वैल्यू, हर चीज को डेप्रिशिएट कर, उसकी जो उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई डेप्रिशिएशन से, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी हुई, आपकी कार हुई, उसकी जो वैल्यू डेप्रिशिएट हुई उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मेरा जो नेट एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, जो मेरा नेट नेशनल प्रोडक्ट, वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। बट जो ये मैंने कैलकुलेशंस करी हैं सारी, ये इन मोस्ट केसेस आई एम अज्यूमिंग कि हम मैं मार्केट प्राइस पे कर रहा हूँ। अब ये मार्केट प्राइस क्या होता है? सो दिस जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस का मतलब है कि फाइनल जो कंज्यूमर है, फाइनल जो कंज्यूमर है, उसके पास जब प्रोडक्ट पहुंच चुका है, उस टाइम इस चीज की सबकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे जब मैं जीडीपी कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो एक जीडीपी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ जो फैक्ट्री में सामान बन रहा है। एक जीडीपी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेट्स से कि मैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात कर रहा हूँ, तो लेट्स से कि एग्जांपल कि मैं आपके नोटबुक की बात कर रहा हूँ, या ये लेट्स से आप लैपटॉप पे या मोबाइल पे मुझे देख रहे हैं, तो लेट्स से मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ। तो यू नो कि लैपटॉप है, अगर इंडिया की किसी फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ है, तो फैक्ट्री में बहुत जगह से सामान आया होगा और फिर वहां पे उसको मैन्युफैक्चरिंग किया होगा। फैक्ट्री में से ये पूरा रेडी होके इट वुड हैव गॉन, इट वुड हैव बीन ट्रांसपोर्टेड टू अ पर्टिकुलर सेंटर, अ पर्टिकुलर गोडाउन ऑफ लेट्स से इन, इफ इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन बैंगलोर, नॉर्थ इंडिया में एक गुड़गांव में या दिल्ली में या कहीं पे इसका एक बड़ा एक हब होगा जहां पे ये ट्रांसपोर्ट होगा। फिर उस ट्रांसपोर्टेड हब से ये लेट्स से अगर मैं राजस्थान में रहता हूँ, सो इट्स पॉसिबल कि राजस्थान को भी मैंने अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करा होगा। तो लेट्स से जयपुर सेक्टर में डिवाइड करिए, जयपुर आएगा, जयपुर से ये लेट से एक पर्टिकुलर जो मेरा डीलर है, जो मेरी फाइनल शॉप है, वहां पे आएगा, और फिर वो फाइनली कंज्यूमर के हाथ में आएगा। तो यू कैन सी कि इस पूरे चेन के अंदर में, सप्लाई चेन, इस सप्लाई चेन के अंदर में मैं अलग अलग जगह पे वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो एक एक्सट्रीम पे तो होता है मार्केट प्राइस। व्हाट इज मार्केट प्राइस? जब फाइनल कंज्यूमर के हाथ में आ गया, एट दैट पर्टिकुलर टाइम उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। ओके, एंड दूसरे एक्सट्रीम पे आता है फैक्टर कॉस्ट। एंड व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट होता है जो मेरे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो उसकी कॉस्ट रही होगी, उसके अंदर में क्या वैल्यू एडिशन हुआ होगा। ओके, सो मार्केट प्राइस में कंज्यूमर के हाथ में जब प्रोडक्ट आ गया तब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, और फैक्टर कॉस्ट के अंदर में जो फैक्ट्री के अंदर में कॉस्ट है, मैं वहां पे इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एट मार्केट प्राइस में बेसिकली मींस कि यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, सॉरी नॉट जस्ट, यस इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस है मेजरली आपके, डायरेक्ट टैक्स तो लगेगा नहीं किसी प्रोडक्ट के ऊपर में, जीएसटी लगता है जैसे, तो जो मेरे इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर में। ओके, और सब्सिडीज को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सो दैट मुझे एग्जैक्टली उस प्रोडक्ट की वैल्यू समझ में आ जाए, उसकी वैल्यू रिडक्शन नहीं समझ में आए। ओके, एंड ऑन दी अदर हैंड अगर मुझे फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर पे, फैक्ट्री के लेवल पे क्या होता है वो कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली मार्केट प्राइस में से फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस में मैं क्या करूंगा, आई सब्ट्रैक्ट द इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिकॉज अब तक इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगे हैं, और प्लस
मैं यहाँ सब्सिडी ऐड कर दूंगा, बिकॉज मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सब्सिडी भी उसका प्राइस है। अगर सब्सिडी नहीं होती तो मुझे वो वैल्यू भी मेरे पार्ट हो जाती। तो इसलिए मैं एनएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट करने के लिए, फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करूंगा, मार्केट प्राइस में से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का कंपोनेंट है उसको तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और सब्सिडी का जो कंपोनेंट है उसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी निकाल सकता हूँ। Okay, so I hope you are able to understand this particular concept. Again, these kind of questions do not usually come in your exam. Exam में नहीं आते हैं, but I thought कि ठीक है, एक concept है basic सा economics का, so I made you understand. ठीक है, तो अब हम आगे मूव करते हैं आज की न्यूज पे। ओके, so first न्यूज जो हम हिंदू न्यूज़पेपर से देख रहे हैं, on the front page it was सेंटर अप्रूव्स न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। तो जो आपकी ट्यूबरक्लोसिस है, tuberculosis है, it's one of the major cause of deaths in India. Okay, और the problem with TB is कि TB का जो बैक्टीरिया, so TB is caused by a bacteria, TB is caused by a bacteria, and जो TB का बैक्टीरिया है ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो इसकी मेडिसिन होती है इसको ट्रीट करने वाली, उससे रेजिस्टेंट होता जा रहा है, इट इज गेटिंग रेजिस्टेंट। ठीक है, रेजिस्टेंस बिल्ड करता जा रहा है टू दोज मेडिसिन, रेजिस्टेंट टू एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन। Okay, and this is a big problem also, which is also known as AMR resistance, antimicrobial resistance, antimicrobial resistance. Okay, and this is a big problem, AMR resistance, not just in TB but everywhere. तो because यहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्ड होती जा रही है, तो इसका जो टीबी है, इसका जो फॉर्म है वो और भी ज्यादा वर्युलेंट होता जा रहा है, ज्यादा फैलता जा रहा है। इसको ट्रीट कर पाना, वर्युलेंट का मतलब होता है और ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है। तो व्हाट हैपनिंग इज, टीबी जो है वो कन्वर्ट हो रही है आपकी इनटू मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बेसिकली नॉट वन और टू लेवल ऑफ ड्रग्स, बट जो हायर लेवल के भी ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, मल्टी ड्रग्स से वो रेजिस्टेंट हो चुका है। ठीक है, एंड नॉट जस्ट दिस, because of the wrong usage of these medicines, because of not completing the courses of these medicines, जो MDR TB है ये एक और भी ज्यादा वर्गुलेंट फॉर्म ऑफ टीबी में कन्वर्ट हो चुका है, विच इज योर एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। एंड यहाँ पे आपके जो ड्रग्स हैं, जो यूजुअल ड्रग्स हैं, बहुत हाई लेवल के भी ड्रग्स हैं, दे डू नॉट वर्क, दे डू नॉट वर्क, ये वर्क ही नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे इट्स बिकमिंग अ प्रॉब्लम। ओके, सो अभी वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू रेजिमेंट फॉर योर एमडीआर टीबी, MDR TB. Okay, and what that regimen is, that regimen is BPALM regimen. Again, I do not think you have to remember this, but still, if you want to do, you can do this thing. कि B palm, palm हाथ होता है, B palm is the regimen. एंड इसका नाम कहाँ से आता है, तो इट्स बेसिकली जो मल्टीपल, इट्स MDR TB, फॉर MDR TB के लिए आप ये रेजिमेंट यूज कर रहे हो, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस। तो मल्टीपल ड्रग्स होंगे, तो ये BPALM बेसिकली डिनोट्स द डिफरेंट ड्रग्स विच आर बीइंग यूज्ड। आपको वो ड्रग्स याद नहीं करने हैं, उन इफ यू वांट टू नो वो ड्रग्स आपके यहाँ मेंशन भी है, बीडाक्विलाइन, प्रीटोमेनिड, लिनेजोलिड एंड मॉक्सीफ्लोसिन, मॉक्सीफ्लोसेसिन। ओके, सो दीज आर द 4 ड्रग्स, और उनके ही 4 नाम को जोड़ के हमने इस बी पाम रेजिमेंट को करा है। बी पाम रेजिमेंट से आप याद भी कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर दीज 4 ड्रग्स, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं पास। ठीक है, बट अब हमने एमडीआर टीबी के लिए, सो नेक्स्ट लेवल जो सेकेंड लेवल की टीबी है, टीबी से जो एक्सट्रीम फॉर्म है बट मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट है बट सबसे नहीं है, तो इन 4 ड्रग्स के कॉन्पोर्शन से, मतलब इन चारों को मिक्स करके जो आप अगर कोई रेजिमेंट बनाते हो, कि ऑब्वियसली डॉक्टर आपको बोलेगा सुबह ये ड्रग, शाम को ये ड्रग, रात को ये ड्रग, इस तरीके से आपको लेना है, जिससे आपकी जो एमडीआर टीबी है वो भी आपकी सही हो जाएगी। एक्सडीआर टीबी के लिए एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई ड्रग नहीं है, इट इज एक्सट्रीमली ड्रग रेसिस्टेंट, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट सच काइंड ऑफ टीबी। Okay, so what exactly is TB? So TB is a bacterial infection caused by Mycobacterium tuberculosis. Okay, so this is the name of the bacteria, Mycobacterium tuberculosis, affecting various organs, with the lungs being the most common. So many people have this misconception, and it is not your problem, बट बिकॉज नॉलेज बहुत कम है, इसका उसका स्प्रेड बहुत कम है। मैनी पीपल बिलीव कि जो टीबी होती है वो सिर्फ लंग्स में होती है, बट दैट इज नॉट द केस। आपकी जो टीबी होती है वो किसी भी ऑर्गन्स को इम्पैक्ट कर सकती है, किसी भी ऑर्गन में, बॉडी के पार्ट्स में, बोन के अंदर में, कहीं पर भी आपकी टीबी हो सकती है। एंड आई नो सर्टेन सम केसेस,
among my friends जिनको इस टाइप की टीबी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हो चुकी है, एंड इट इज वेरी डेंजरस एंड इट इज वेरी कॉमन ऑल्सो। ओके, सो लंग्स, सबको लगता है कि टीबी का, बिकॉज एडवर्टीजमेंट जो आते हैं उसमें एक पर्सन जिसको टीबी होती है उसको खांसते दिखाया जाता है, बिकॉज सबसे कॉमन जो आपका टीबी फॉर्म होता है वो लंग टीबी ही होता है, तो दैट्स व्हाई दिस मिसकंसेप्शन। बट टीबी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। ओके, एंड many people, so it's very hard to find out this particular fact कि क्या इसकी कोई वैक्सीन भी है। so yes, इसकी एक वैक्सीन भी है जिसका नाम है बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, ये पूरा नाम भी याद करने की आई डोंट थिंक रिक्वायरमेंट है, यू शुड रिमेंबर द इट इज बीसीजी वैक्सीन, बिकॉज कॉमन पार्लेंस में से बीसीजी ही बोला जाता है, बट इट स्टैंड फॉर बेसिल कैलमेट ग्यूरी। बेसिल कैलमेट ग्यूरी, जो बेसिकली दो फ्रेंच आपके यहाँ पे डॉक्टर्स थे या साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर वैक्सीन को यहाँ पे फॉर्म किया था, इसको डिस्कवर किया था, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। सो दिस इज द बीसीजी वैक्सीन which has been found to be very effective against prevention of tuberculosis. Okay, now what India is doing specifically for its elimination program, so India has launched Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan. प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान, इट वाज इट्स अ प्रोजेक्ट टू एलिमिनेट टीबी फ्रॉम इंडिया बाय द ईयर 2025, बट इट वाज रिसेंटली रिपोर्टेड, टीबी वाला जो न्यूज है आपका बहुत टाइम से न्यूज में, इट वाज रिसेंटली रिपोर्टेड कि इंडिया के अंदर में जो टीबी के ड्रग्स हैं उसकी कमी हो गई है। सो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ टीबी ड्रग्स इन इंडिया, एंड उस वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रोबेबली जो 2025 का गोल है वी वोंट बी एबल टू अचीव इट। Let's keep our finger crossed. As of now, our goal to eliminate TB, कि TB खत्म कर देंगे हम, it is 2025, which is 5 years ahead of the goal of WHO. तो WHO का गोल है 2030 का, और इंडिया उसे 5 साल पहले इस गोल को अचीव करना चाहता है। लेट्स सी वी कैन अचीव इट और नॉट। इसके लिए हमने नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान लॉन्च करा था इन 2017, एंड दिस इज बोथ ऑफ दीज आर इंटरकनेक्टेड ओनली। 2017 में लॉन्च करा, 2025 तक हमें इसको अप्रोच करना है। इसके अलावा देयर इज अ निक्षय पोषण योजना। सो अगर आप कहीं पे भी निक्षय वर्ड पढ़ो तो ये रिमेंबर दिस, इट इज रिलेटेड टू टीबी ओनली। Okay, so this is the Nikshay Poshan Yojana, which supports TB patient with nutritional assistance. So one of the problem why it becomes difficult to treat TB is because you need a very good level of nutrition to control your TB or to manage your tuberculosis. Okay, but in India, because of poverty and other reason, the nutrition level, at least of the lower middle class or the lower class, is not very good. Because of this, it becomes very difficult to treat your TB, which is not that tough to eliminate or to treat if you are having a good nutrition. तो न्यूट्रिशन को फोकस करते हुए हमने निश्चय पोषण योजना भी स्टार्ट करी थी, सो दैट जो टीबी पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते न्यूट्रिशनल असिस्टेंस, उनको वो न्यूट्रिशनल असिस्टेंस भी मिल जाए। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग योर फर्स्ट पर्टिकुलर। Let's move to the next news, which is basically one killed, five injured in rocket attack on Manipur ex-CM house. तो मणिपुर के एक्स सीएम के ऊपर पे रॉकेट से अटैक हुआ है। सो दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग कि अब आपके एक स्टेट के अंदर में जो दो ग्रुप्स के बीच में जो आपका एक काइंड ऑफ सिविल वॉर रन कर रहा था, वो उस पर्टिकुलर स्टेलमेट के अंदर में या उस पर्टिकुलर लड़ाई के चक्कर में अब वहां पे क्या हो रहा है, इवन जो आपके वॉर के टाइम पे कंट्रीज के बीच में जब वॉर्स होते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है, वहां पे जो आपके वेपन्स यूज होते हैं, अब एक्चुअल में आपके यहाँ पर भी वो वेपन्स यूज हो रहे हैं। सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ओके, बट मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस इज कि बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन मणिपुर। तो मणिपुर में एक साल करीब करीब होने वाला है, एक साल, और मणिपुर के अंदर में आपका जो सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है, वेयर टू ग्रुप्स आर एट थ्रोट ऑफ वन ऑफ ईच अदर, जो है अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सो मणिपुर के अंदर में अगर मैं आपको ये समझाऊं तो दो कम्युनिटीज हैं, एक तो है मेती कम्युनिटी और एक है आपकी कुकी जोमी। सो कुकी जोमी है जो बेसिकली आपकी, आई कैन कॉल इट एज अ जनरल कास्ट की तरह है आपकी। दे आर मेजरली हिंदूज बाय रिलीजन, और दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड अराउंड 60% पॉपुलेशन, more than 60% population of this particular Tripura. Sorry, not Tripura, Manipur. My apologies, of Manipur. And they constitute so much population that there are 60 seats, 60 MLAs, 60 seats in the Legislative Assembly. 40 of those MLAs come from this particular single group only, Metis. And they usually live in they not usually, but they live in the plain areas of Manipur, which is basically their capital. Okay, तो जो मणिपुर की कैपिटल है आपकी इम्फाल,
वहां पर ही आपको ये मेजरली आपके मणिपुर के आपको मेती कम्युनिटी है जो वहीं पे ही लोकेट होती है। ऑन द अदर साइड इज योर कुकी जोमी कम्युनिटी विच इज अ ट्राइबल पॉपुलेशन विच इज अ ट्राइबल ग्रुप। तो डिफरेंट होते हैं, यूजली नागास भी हो सकते हैं, ये मणिपुरीज भी मिल जाएंगे आपको, बट मेजरली ये एक आपका ट्राइबल ग्रुप है जो हिली एरियाज है रेदर देन प्लेन एरियाज, हिली एरियाज में रहते हैं। मेनी ऑफ देम हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी आल्सो बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी इनटू दीज एरियाज। तो कई ने क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, and they constitute around not more than 10%, not more than 10% population of Kukizomi, but because Kukizomi is not the only tribal population जो इस particular region में रहती है, और भी रहते हैं, तो it is also another important tribal community there। एंड Kukizomi community जो है इसके पास में scheduled tribe status है, ओके। शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है, मोर ओवर कुकीज जो हैं ये दे हैव बीन इन्वॉल्वड इन इंसर्जेंसी एक्ट्स आल्सो। तो जस्ट लाइक नागा ट्राइब जो कुकी ट्राइब है ये भी आपके इंसर्जेंट एक टाइप के इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व थी, तो इसकी वजह से ये थोड़ी पॉलिटिकली पावर भी होल्ड करती है, थोड़ा अपना वहां पे इसका रुतबा भी चलता भी कह सकते हो, ठीक है। और दिस पर्टिकुलर कुकीजोमी ट्राइब्स आर फाउंड नॉट जस्ट इन इंडिया बट दे आर ऑल्सो फाउंड इन म्यांमार ऑल्सो। तो म्यांमार में भी ये ट्राइब आपको मिल जाएगी। अब द प्रॉब्लम वाज कि यहाँ पे ये सारा इश्यू स्टार्ट कैसे हुआ। तो लास्ट ईयर आपके त्रिपुरा, आपके मणिपुर में आपके हाई कोर्ट ने एक पर्टिकुलर जजमेंट दिया। उसमें दे आस्क्ड द गवर्नमेंट टू परस्यू मेथीज डिमांड फॉर देयर इंक्लूजन इन द एसटी स्टेटस, कि जो मेथी डिमांड कर रही है एसटी स्टेटस को अचीव करने की, उसके लिए जो गवर्नमेंट है उसको कुछ एक्ट करना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दिस जो कुकी जोमी कम्युनिटी जिसके पास में एसटी स्टेटस था, एंड नॉट जस्ट कुकी जोमी कम्युनिटी, जो वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनकी जो स्टूडेंट यूनियन थी, ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन वहाँ पे, तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट यूनियन ने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड विद अ रैली। ये जो रैली निकाली, इस रैली के अगेंस्ट में जो आपकी मेथी कम्युनिटी के स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने भी रैली निकाली। एंड ये जब रैली एक दूसरे के रीजन से निकल रही थी आई, तो वहां से स्टोन थ्रोइंग और वायलेंस स्टार्ट हो गया। एंड स्लोली स्लोली दिस वायलेंस रीच वेरी लार्ज स्केल, और मणिपुर के जितने भी आपके एरियाज थे हर जगह में ये वायलेंस हुआ। सो मच सो कि जहां पे आपके मिलिट्री डोमिनेटेड एरियाज थे वहां से कुकीज को भगाना स्टार्ट कर दिया गया, वहां से उनको मारना स्टार्ट कर दिया गया, और कुकीज में ट्राइबल एरियाज में से मिलिट्रीज को भगाना स्टार्ट कर दिया। सो द सिचुएशन वाज सो बैड, ओके। एंड फाइनली इसकी वजह से क्या हुआ, दोनों ही जो कम्युनिटी है इनके ऊपर में एक प्रॉपर सिविल वॉर टाइप स्टार्ट हो गया। So if a Kuki Zomi group saw any Methi person, they would kill them on the spot, and same was the case with Methi community अगर वो उसको देखते थे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होनी स्टार्ट हो गई कि लाइक आई टोल्ड यू कि जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 40 एमएलए आपके मेथी गवर्नमेंट के मेथी के कम्युनिटी के। गवर्नमेंट जो है आपकी पुलिस सर्विस जो है यहाँ पर भी मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर फ्रॉम दिस मेथी कम्युनिटी ओनली। So there were certain allegations कि जो वहाँ की मणिपुर की गवर्नमेंट है, it is actively supporting the Metis आपके arsonist and those who are causing trouble। तो जो आर्सनिस्ट थे आपके, आर्सनिस्ट बेसिकली कि जो आग लगा रहे हैं वहां पे, और जो बेसिकली जो वहां पे राइट कर रहे थे, मेथी जो राइट कर रहे थे वहां पे, उनको ये एक्टिवली आपकी जो गवर्नमेंट है वो हेल्प कर रही थी, यहाँ तक कि जो पुलिस आर्मरी में वेपन्स रखे थे वो भी इनको सप्लाई कर दिए गए। तो देयर वाज अ डिमांड ऑल्सो कि यहाँ पे अब हमें मणिपुर के अंदर में हमें अब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देना चाहिए, बट फॉर सम रीजन एंड मैनी पीपल बिलीव कि बिकॉज वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट है, एंड दैट्स व्हाई बीजेपी गवर्नमेंट ने वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उनको डिसमिस नहीं करा, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और अभी तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया। बट अब एक साल करीब हो चुका है, स्टिल कोई भी हमें सॉल्यूशन यहाँ दिख नहीं रहा है, और फिर से दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट इफ दे कीप हैपनिंग देन इट वुड अगेन बिकम अ वेरी ट्रबल्ड रीजन ऑफ इंडिया, ओके। तो ये एक अपडेट है रिगार्डिंग द सिचुएशन इन मणिपुर, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वाड लीडर्स शेड्यूल टू मीट इन यूएस ऑन सितंबर 21। सो अगेन गुड न्यूज कि आपका जो क्वाड एक अनदर सिक्योरिटी डायलॉग आपने फॉर्म किया था टू काउंटर चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन, उसकी मीटिंग होगी सितंबर 21 को यूएस के अंदर में। द बैड न्यूज इज अर्लियर दिस पर्टिकुलर मीटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर was supposed to happen in India, but as of now उसको हमने कैंसिल कर दिया गया, एंड अब कैंसिल नहीं, उसको हमने अभी न्यू दिल्ली की जगह इसको होस्टिंग जो है उस बार यूएस को मिलके, बिकॉज आपका इन सबका शेड्यूल बहुत बिजी है। यूएस के अंदर में इलेक्शंस भी चल रहे हैं, इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो इस वजह से इट वाज डिसाइडेड कि इस बार आपका जो क्वाड का लीडर्स का मीटिंग है वो आपका इंडिया में ना होके यूएस में हो रहा है, ओके। जो एग्जैक्ट वेन्यू वेन्यू होगा
we are not aware of that particular venue, but this gives us an opportunity to discuss the Quad again. Okay, so we have discussed it earlier also. First, you should know what is the full form of Quad. So Quad stands for Quadrilateral Security Dialogue. तो ये जो सिक्योरिटी डायलॉग है ये चार कंट्रीज के बीच में है. दिस इज बेसिकली बिटवीन जापान, इंडिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके, so this particular Quad initiative was first suggested by Shinzo Abe. So Shinzo Abe is the former, the late Prime Minister of Japan, and it was his suggestion that we, to counter China in the South China Sea, in the Indo-Pacific region, we have to create our very own security dialogue, or we have to at least start our own security initiative also. So in 2007, he initiated this idea of what. There was a meeting also, but finally, in just 1 year, your country of Australia withdrew from this particular Quad. And many people believe the reason Australia withdrew was that जो China and Australia के trade relations were very much in favor of China at that time. But Australia was also getting some benefit out of it, and China was becoming a big market for Australian goods, specifically your dairy products from Australia. तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने out of threat of China, it decided to withdraw from this particular Quad dialogue. But again, in 2012, Shinzo Abe again started with the concept of Democratic Society Diamond, DSD. DSD, and again, this was the same thing only. It was the another name for Quad only at that time. Okay, so in 2010, again, a kind of initiative was being launched by your Shinzo Abe. But finally, was in the year 2017 that all of these four countries again came together on the sidelines of your ASEAN summit. Okay, ASEAN summit हो रही थी आपकी मनीला फिलीपींस के अंदर में, and there on the sideline they decided to host the first Quad meet also. And फिर से ये चारों कंट्री और इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया दे मेट इन 2017, एंड यहाँ से यू कैन से कि क्वाड का बिगनिंग स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो ऑफिशियल सेकंड इनिंग्स ऑफ जो क्वाड है वो 2017 में आता है. तो रिमेंबर दिस कि आपको क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि वो 2007 के ईयर की बात कर रहा है या 2017 वाले इवेंट की बात कर रहा है, क्योंकि 2007 में हम कुछ भी, ऑल्दो अभी भी ये इनफॉर्मल ही है क्वार्टरली सिक्योरिटी डायलॉग, बट 2007 में इट वाज ओनली एन आइडिया. So there was very informal meetings. There was no uh, no basics over which these four would be agreeing on. But 2017 में जाके हम कुछ set ideas के ऊपर पे, set programs के ऊपर पे started our discussion. So from 2017 onwards, I can say कि पहली quad meet हुई आपकी मनीला में, which was at the sidelines of ASEAN Summit or 2017. Okay. Moreover, there was a particular exercise which was a joint naval exercise started between India and USA. So India US की joint exercise थी. Later on, Japan joined it, and after some time, Australia has also joined it. So now this Malabar Coast exercise, which is basically hosted by your Indian Navy only. Earlier, it was only a bilateral exercise between India and US. Later on, Japan was added, and later on, Australia also added to it. So now it's a multilateral exercise, multilateral naval exercise in the Indian Ocean. Okay, और ये जो मालाबार एक्सरसाइज है इसको ही हम अब क्वाड एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं. तो द अदर नेम फॉर क्वाड एक्सरसाइज इज योर मालाबार एक्सरसाइज और वाइस वर्सा. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग योर क्वाड लीडर्स शेड्यूल्ड मीट. नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं. नेक्स्ट न्यूज इज जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स नॉट द चार्टर ऑफ अ सिंगल जज मस्ट बी कोलैबोरेटिव. सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मध्य प्रदेश के एक हाई कोर्ट के जज अपॉइंटमेंट के ऊपर पे एक तीखी टिप्पणी करी है. टिप्पणी मतलब कि उन्होंने कमेंट पास किया है, एंड दे सेड कि जो आपके जजेस के अपॉइंटमेंट होता है, इट इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ अ सिंगल जज. फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट में सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही नहीं डिसाइड करेंगे. तो इफ यू रिमेंबर, आपके 3 जजेस केस हुए थे. ठीक है, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस. ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. इन तीनों का इन तीनों का कंक्लूजन क्या था कि जो प्रेसिडेंट है वो जब कंसल्टेशन कर रहा है, तो ही हैज टू कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस four senior most judges when it's come to appointment of judges to the Supreme Court. And these 3 judges case also stated that at the High Court level also, the president has to consult the governor, the Chief Justice of India, and the Chief Justice of that High Court. And
Here also the Supreme Court clarified that here the consultation with Chief Justice of High Court does not mean a consultation with only the Chief Justice of High Court, but it means consultation in the form of concurrence with Chief Justice of that particular High Court plus two senior most judges. So what has happened in this particular case, that the name which were forwarded for promotion as a High Court judge, those names are only forwarded by the Chief Justice of that particular High Court, and the two senior most judges' opinion was not taken into account. So now the Supreme Court has stated in this particular case the names have been sent back to the parent High Court, as well as it has suggested to that it has advised all the High Courts that it is a collaborative process, and we are not asking, the consultation is not just limited to the Chief Justice of that particular High Court, but it includes the Chief Justice of High Court and the two senior most judges also. Just like for appointment of Supreme Court judges, there is a Collegium of Chief Justice of India and four senior most judges. Okay, so this is what the Supreme Court has stated in this particular case. Okay. Moving on to the next one. So NTCA letter on relocation from Tiger Jones draws iron. Okay. So आपका 1973 में आपने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट टाइगर, एंड द सोल एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट टाइगर वाज टू रीपॉपुलेट इंडियन फॉरेस्ट विद टाइगर्स, बिकॉज इंडिया में बिकॉज ऑफ पोचिंग, हंटिंग एंड अदर रीजंस जो टाइगर की पॉपुलेशन थी इट वाज गेटिंग रिड्यूस. सो 1973 में हमने एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, आपका स्पेसिफिक एक प्रोग्राम लॉन्च किया, प्रोजेक्ट टाइगर, टू रीपॉपुलेट इंडियन फॉरेस्ट विद टाइगर्स. ओके, सो दिस वाज द प्रोजेक्ट. सो अंडर दिस प्रोजेक्ट टाइगर, सो इफ यू रिमेंबर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका, इफ यू नो द ईयर, ये 1972 में आया था. ओके, 1972 वाज द ईयर जब आपकी वर्ल्ड में पहली एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी, विच इज आल्सो नोन एज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. तो जो इंडिया के भी इनिशिएटिव थे, नॉट जस्ट इंडिया, एवरीवेयर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, आपके इस टाइप के वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के एक्ट्स, स्टैट्यूटरी एक्ट्स एंड योर प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व टाइगर्स, योर एलिफेंट्स एक्सेट्रा वर बीइंग लॉन्च्ड एवरीवेयर. ठीक है, तो इंडिया ने भी करा. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में हमने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स, इस टाइप के डिविजन्स बनाने स्टार्ट कर. बट 72 में जब इसको बनाया, वी वांटेड कि देयर शुड बी अ स्पेशलाइज्ड बॉडी. तो आपके इसी बॉडी, वर्ल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में हमने एक एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी क्रिएट करी. ओके, एनटीसीए भी क्रिएट करी, सो दैट हम टाइगर्स पे अलग से फोकस कर सकें. ओके, सो जब हमने, सो कमिंग बैक टू द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, तो हमने जब ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स को डिमार्केट करना स्टार्ट किया, तो हमने किसी भी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या नेशनल पार्क को डिवाइड करना स्टार्ट किया इनटू टू पार्ट्स. वन वाज द कोर एरिया and the other was your buffer area or buffer zone. Core zone या core area and buffer zone. तो core area जो होता था, this was the critical tiger habitat. इस particular area में ना तो कोई commercial और economic activity allow होगी, no commercial activity allowed, and moreover even no habitation was allowed. कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में कोई आपका विलेज एरिया भी है, कोई विलेजर्स यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन भी रहती है, तो उनको आपको मूव आउट करना है, पॉसिबली आउटसाइड इवन द बफर जोन. बट इफ नॉट पॉसिबल, तो बफर जोन में आपको मूव करना है, कोर एरिया में से आपको निकालना पड़ेगा. ठीक है, मोर ओवर जो बफर जोन होता है, इसमें भी कोई भी कमर्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउ नहीं है. व्हाट इज अलाउड इज ओनली योर ट्राइबल एक्टिविटीज, या फिर आई शुड से हैबिटेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन विच इज लिविंग, विच आर फॉरेस्ट dwellers, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट से गया अपना गया गुजारा निकालते हैं, फॉरेस्ट dwellers जो होते हैं आपके ट्राइबल हैबिटेशन, ये यहाँ पे हो सकती है. इसके अलावा यहाँ पे और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती. ओके, सो व्हाट हैज हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस इज कि यहाँ पे एनटीसीए ने लेटर भेजा है आपकी कर्नाटका को, कि जो टाइगर जोन्स बनाए हैं आपने, उसमें से रीलोकेशन करना है. बेसिकली जो पॉपुलेशन अंदर रह रही है, उनको आपको वहां से रेसिडेंट्स को रिमूव करना है. ओके, सो अब हम एक बार एनटीसीए को भी पढ़ लेते हैं और प्रोजेक्ट टाइगर को भी शॉर्ट में देख लेते हैं. ठीक है, सो पहला है व्हाट एग्जैक्टली इज एनटीसीए. तो एनटीसीए स्टैंड्स फॉर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. इसको हमने 2005 में क्रिएट किया था, एंड इसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. 2002 और 3 में आपका एक सरिस्का टाइगर रिजर्व है, विच इज इन माय होम टाउन ऑफ अलवर.
तो अलवर में आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व है। तो 2002 और 3 में इट वाज रिपोर्टेड कि वहां पे टाइगर्स को मैनेज करने के लिए, टाइगर्स के केयर के लिए 2 करोड़ पर टाइगर तक का खर्चा निकाला जा रहा है, 2 करोड़ पर टाइगर। एंड इट वाज लेटर फाउंड आउट कि बाय द ईयर 2002-3 जो सरिस्का है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, वहां पे टाइगर निल हो चुके थे। All of the tigers have either died or have been killed by hunters, etc. So most probably they were killed, and there were allegations कि जो forest officers हैं they were also involved in that hunting and poaching. Okay, उसमें वो भी involved थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2003 के अंदर में आपने एक टाइगर टास्क फोर्स बनाई एंड उसने आपको ये एक रिकमेंडेशन दिया कि हमें एक बॉडी, स्पेसिफिक बॉडी क्रिएट करनी चाहिए जिसका सिर्फ काम होगा टाइगर कंजर्वेशन करने का। So on this particular note, we constituted this NTC, National Tiger Conservation Authority, in the year 2005. 2005 में इसको constitute करा under Wildlife Protection Act of 1973. Okay. Now it was established to reorganize the management of Project Tiger and many tiger reserve, कि कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर का, टाइगर रिजर्व इन इंडिया का, उन सब का हमने यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। ओके, सो प्रोजेक्ट टाइगर जो था हमने 1973 में लॉन्च किया, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो टाइगर पॉपुलेशन है, जो करंट पॉपुलेशन है, उसको सर्वाइव करना, उसको मेंटेन कराना एंड इफ पॉसिबल इसको इंक्रीज भी करना है, और हमें डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व्स क्रिएट करने हैं अंडर एनटीसीए। Okay, so this is the opinion. This is basically a suggestion by the NTCA, which leads to a particular state declaring a particular area as a tiger reserve or not. Okay, तो NTCA ही recommend करता है। Moreover, ये जो NTCA होता है, this is responsible for conducting tiger census. टाइगर की क्या पॉपुलेशन है उसको ये आइडेंटिफाई करने का काम, उसको सेंसस करने का, जैसे पॉपुलेशन सेंसस होता है, टाइगर सेंसस एनटीसीए कंडक्ट कराता है। ओके, एंड इट यूजेस द कैमरा ट्रैप मेथड। तो पहले पग मार्क मेथड होता था। पग मार्क मेथड वाज वेरी अनसाइंटिफिक, कि आप जो डिफरेंट टाइगर्स होते हैं उनके जो पग्स होते हैं, उनके जो पाम्स होते हैं, उनके जो उनका जो डिजाइन होता है डिफरेंट फॉर एवरी टाइगर। तो आप हर किसी टाइगर्स के पग मार्क वहां पे जाके, पगमार्क्स जाके आप वहां पे चेक करते हो, उससे यू ट्राई टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट नंबर। बट बिकॉज ये अनसाइंटिफिक था, तो फाइनली दे मूव टू अ कैमरा ट्रैप मेथड। सो कैमरा ट्रैप मेथड क्या है कि आप जगह जब भी कैमरास लगाते हो, जो मेन पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे वाटर होल जो होते हैं, आपके वाटर रिजर्वायर्स होते हैं, वहां पे आपके सारे टाइगर्स किसी ना किसी वाटर रिजर्वायर पे पानी पीना है, तो वहां पे आप कैमरा ट्रैप्स लगाते हो। एंड जितने भी टाइगर के ऊपर पे जो स्ट्राइप्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, सबकी स्ट्राइप्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके पैटर्न से कि ये कौन सा टाइगर है। ओके, सो आप कैमरा ट्रैप मेथड से उनको ट्रैप करते हो, उनकी फोटोज को ट्रैप करते हो। तो आपने अभी देखा भी होगा कि एक पुष्पा 2 का जो टीजर आया था, उसके अंदर में भी कैमरा ट्रैप मेथड से वो टाइगर मूव कर रहा होता है। दैट पर्टिकुलर कैमरा जो फॉरेस्ट में लगा हुआ है, दैट वाज फॉर दैट टाइगर ओनली। और जो आपका एनटीसी होता है वो ही उनको इंस्टॉल करता है, बट उसमें कौन दिखता है आपको? पुष्पा दिखता है। ओके, ठीक है। तो अनदर थिंग, आगे चलते हैं। Another important fact regarding this particular tiger success of Project Tiger is कि जो आपका Project Tiger है, it is home to the largest population of tigers in the world. Okay, ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा टाइगर्स कहाँ पे? सो दे आर इन इंडिया ओनली। एंड इंडिया का जो टाइगर है उसे हम बंगाल टाइगर भी बोलते हैं। ठीक है, और करंटली देयर आर 55 टाइगर रिजर्व्स। तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए आई एम अटैचिंग दिस फाइल ऑल्सो। तो आप जब एनटीसीए के वेबसाइट पे जाओगे, देयर यू वुड फाइंड द ऑफिशियल डेटा। तो 2023 में हमने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इन राजस्थान को 2023 के अंदर में ही हमने इसको आपका 55th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया था। सो एज ऑफ नाउ देयर आर ओनली 55 टाइगर रिजर्व, जिसमें से जो लास्ट टू थे आपके 54 55 वो आपके 2023 में जाके हमने फाइनलाइज करे थे। ओके, इसके बाद आपके एक पर्टिकुलर पोर्टल, एक मॉनिटरिंग सिस्टम की बात हो रही है, विच इज द एम स्ट्राइक्स पोर्टल। और ये क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो जस्ट रिमेंबर कि एम स्ट्राइप्स अगर कहीं पे आ जाए तो ये किससे डील करता है? सो इट इज रिलेटेड टू टाइगर कंजर्वेशन। इट इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एनटीसी इन 2010 टू असिस्ट पेट्रोल एंड प्रोटेक्ट टाइगर हैबिटेट्स। सो अगेन आई टोल्ड यू कि स्ट्राइप्स के बेसिस पे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आप सिंपल ये ऐप यूज करोगे, इस मॉनिटरिंग सिस्टम से आप उस पर्टिकुलर टाइगर को स्कैन करके उसको, उसका नंबर अगर कुछ है, उसका कुछ नेम है, उन सब डिटेल्स को आप उसमें फिल कर सकते हो। तो दिस इज पर्टिकुलरली अगेन सॉफ्टवेयर सिस्टम बीइंग डेवलप्ड बाय एनटीसी। ओके, तो ये है आपकी डिटेल्स रिगार्डिंग योर एनटीसी। आगे मूव करते हैं।
नेक्स्ट इज न्यूज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. सो देयर वर वेरी फ्यू न्यूज ऑन सैटरडे को, वैसे भी कम न्यूज आती हैं. सो आई थॉट कि आज थोड़ा इंडियन एक्सप्रेस में से भी एक दो न्यूज कवर कर लेते हैं. सो जयशंकर, आईमैक विल बी कॉर्नर स्टोर ऑफ ग्लोबल कनेक्टिविटी एट टू ग्रोथ. ओके, तो यहाँ पे आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, ही इज टॉकिंग टू फॉर्मर जापान प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब्स वाइफ इन न्यू दिल्ली, और यहाँ पे दे आर डिस्कसिंग द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. So I've added a map also to make you understand exactly what, from where to where this IMEC is going to go. So from it's going to start from your port of Mumbai. मुंबई से ये यूआई जाएगा एंड इट वुड बी अ सी पोर्ट. सी पोर्ट से अब आपका नेक्स्ट लोकेशन वुड बी अल गुफाफिक. ये सब आपको याद नहीं करना है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट. यहाँ पर भी आपका जो है, यहाँ पे आपका एक रेल रूट है. इसके बाद यहाँ से लेके हरात सऊदी अरेबिया में अगेन आपका रेल रूट है. उसके बाद रियाद सऊदी अरेबिया में ही आपका रेल रूट है. फिर यहाँ से अल हदीद करके है सऊदी अरेबिया में, अगेन अ रेल रूट. सऊदी अरेबिया का अल हदीदा से आप जाएंगे हाइफा इजराइल पोर्ट पे, एंड यहाँ से आपका पिरायुस ग्रीस के अंदर में, पिरायस ग्रीस के अंदर में इज योर लास्ट पोर्ट, जहाँ पे आपका सी रूट है. ओके, सो एक ये रूट आई थॉट कि एक बार डायग्राम से क्या याद हो जाता है, सो यू कैन सी कि कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्रोजेक्ट. सो ये आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है. दिस इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसमें आप रेल रोड एंड सी, रेल रोड एंड शिप या सी बोल लीजिए, सी वाला आप एक रूट रेडी कर रहे हो, सो दैट यहाँ पे आप इजीली ट्रेड का एक रूट क्रिएट कर सको, ऑल्टरनेट ट्रेड रूट क्रिएट कर सको. सो एज ऑफ नाउ यू आर यूजिंग जस्ट द रेड सी, जो सूज कैनाल है उसके थ्रू ही आप यूरोप को एक्सेस कर पाते हो, बट नाउ वी आर क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेटिव रूट. ओके, तो यहाँ पे ओमिक आईमेक प्रोजेक्ट जो है हमने कब लॉन्च किया था. So this was launched last year only, and this took place in India. So I hope if you know this कि लास्ट ईयर की जो G20 है, ग्रुप 20 समिट है, वो न्यू दिल्ली के अंदर में ही होस्ट करी गई थी, एंड यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को G20 में अनाउंस किया गया था. इस आईमैक के अंदर में हमने दो कॉरिडोर्स में इसको डिवाइड करा. एक तो है ईस्ट कॉरिडोर और एक है नदर्न कॉरिडोर. ईस्ट कॉरिडोर कनेक्ट करता है इंडिया को टू द अरेबियन कफ. तो ये वाला जो है, जो आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है. सो ईस्ट कॉरिडोर इज बेसिकली जहां पे आप ये वाला कनेक्शन कर रहे हो इंडिया को, जो आप अरेबियन सी से कर रहे हो. और नदर्न कॉरिडोर है जो ये बाकी का येलो में कॉरिडोर है, दिस इज द नदर्न कॉरिडोर, जिसमें आप गल्फ से आप पूरे यूरोप को यहाँ से कनेक्ट कर रहे हो. ओके, सो दीज आर द टू कॉरिडोर्स ऑफ आईमैक. अब इस आईमैक के अंदर में वी आर ऑल्सो इंक्लूडिंग एन इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन एंड हाई स्पीड डेटा केबल. तो ऑब्वियसली हम एक रेल रोड और शिपिंग रूट यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, बट उसके अलावा वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट अ हाई स्पीड डेटा केबल टू कनेक्ट ऑल ऑफ दीज प्लेसेस, एंड इलेक्ट्रिसिटी केबल टू कनेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑफ ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, एंड ऑल्सो हाइड्रोजन पाइपलाइन, और जिसका मेजर बेनिफिट आपके इंडिया को ही मिलेगा. ये भी आईमैक का ही पार्ट है. अब देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि आईमैक कहाँ कहाँ किन किन कंट्रीज से जा रहा है, और इस आईमैक के सिग्नेटरीज कौन कौन है, इस प्रोजेक्ट के अंदर में कौन कौन लोग इंक्लूडेड. फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर में यूएस इन्वॉल्व है, और यूएस यहाँ पे कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है. बट यूएस का यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है कि यूएस यहाँ पे एक ऑल्टरनेट क्रिएट करना चाहता है टू चाइना. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे यूएस भी इन्वॉल्व है. सो व्हाट आर द कंट्रीज विच आर इन्वॉल्व. इट इज योर इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस, जॉर्डन एंड जर्मनी. ओके, सो दीज आर द कंट्रीज जो आपकी इसके अंदर में इन्वॉल्व है. ओके, सो 8 कंट्रीज एंड 1 यूरोपियन यूनियन, तो टोटल 9 आर देयर. तो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये कंट्रीज तो आई थिंक आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज आई मैक बहुत ज्यादा न्यूज में, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज कंट्रीज एंड योर यूरोपियन यूनियन. ओके, मोर ओवर इंडियन पोर्ट्स कौन कौन से यहाँ पे. सो इट्स नॉट जस्ट कि मुंबई से आपका जो जेएनपीटी है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, सिर्फ नवी मुंबई में सिर्फ यहाँ से आपका हुआ. मुंद्रा और कांडला जो पोर्ट है, वो भी आपके आईमैक से कनेक्टिविटी को करने में हेल्प करेंगे. ओके, so these three ports, your Jawaharlal Nehru Port Trust, your Mundra Port and your Kandla Port would be part of your IMEC corridor. Okay. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. सो टुडे वी डिस्कस प्रोजेक्ट टाइगर आल्सो, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग योर प्रोजेक्ट चीता आल्सो. तो यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर है, आपके एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उनका एक स्टेटमेंट आया है, बिकॉज आपका यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चीता है, अब ये सक्सेसफुल होने की स्टेज पे आ चुका है. पहले इसमें बहुत ज्यादा फेलियर्स हो रहे थे. सो हमने कुछ 20 चीताज को रीलोकेट करा था फ्रॉम योर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, बट 20 में से जो 6 थे वो पहले ही मर गए, एंड बाद में जो और भी 5-6 चीता थे और उनकी डेथ हो गई. बट अब जो है वहां पे पॉपुलेशन जो है वो रिकवर करना स्टार्ट कर चुके हैं, वो एक्लेमेटाइज कर चुके हैं चीताज यहाँ पे, और अब यहाँ पे
जो उनके कब्स भी हो रहे हैं वो भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो अर्लियर देयर वाज अ प्रॉब्लम कि चीता यूजुअली आपके 1 से 2 साल के अंदर में 4 से 5 लीटर करता है या कब्स करता है। एंड जो आपकी मेजरली चीतास, फीमेल चीतास के इतने कब्स हो रहे थे, 4 और 5 में से या तो सारे के सारे या एटलीस्ट 3 वन टाइम। तो वाइल्ड में 3 मर जाते थे, फिर 1 बचता था, तो उसको हम कैप्टिविटी में ही ब्रीड कर रहे होते थे। सो समहाउ इट वाज सर्वाइविंग, बट वाइल्ड के अंदर में दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव। बट अब हम देयर इज अ टर्न अराउंड और हम सक्सेस अचीव करना स्टार्ट कर चुके हैं। सो लेट्स अगेन रिवाइज द प्रोजेक्ट चीता। सो चीता प्रोजेक्ट इट इज बेसिकली योर चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, जो 22 के अंदर 2022 के अंदर में हमने इसको इनिशिएट करा था। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये एनटीसीए जो आपकी प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए इन्वॉल्व है, NTCA is also involved in Project Cheetah, तो इसी को NTCA implement कर रही है in collaboration with your Wildlife Institute of India। तो WII जो है, अब अगेन पहला क्वेश्चन आज का, आई नो आज मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। WII जो है ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WII लोकेटेड? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसका जो फेज 1 था, जो 22 में बिगिन किया, इट हैज नाउ टर्न इनटू अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, और इट इन्वॉल्व्स ट्रांसलोकेशन ऑफ चीतास फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया टू कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अंदर में जो कूनो नेशनल पार्क है, वहां पे हमने साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीतास को ट्रांसलोकेट करा था, मूव करा था। एंड नाउ दिस पर्टिकुलर फेज 1 हैज बीन सक्सेसफुल। ऑन द अदर साइड इज द फेज 2। जो फेज 2 है उसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर सजेस्टिंग कि केनिया से भी हम चीतास को ट्रांसलोकेट करेंगे। केनिया, कंट्री ऑफ केनिया इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस ट्रांसलोकेशन प्रोसेस, एंड केनिया हमसे आपकी नॉलेज एक्सचेंज भी कर रहा है कि हाउ वी हैव बीन एबल टू मैनेज दिस चीता पॉपुलेशन। तो वहाँ के केनिया के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं वो इंडिया आ रहे हैं, देन लर्निंग दिस सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट चीता आल्सो। ओके, एंड इन सेकंड फेज में हम ट्रांसलोकेट करेंगे टू कूनो। सो केनिया से जो आएंगे कूनो नेशनल पार्क में भी आएंगे, एंड प्लस एक और हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीतास को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज योर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन इन मध्य प्रदेश। तो सेकंड फेज में नॉट जस्ट इन कूनो बट गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी हम चीतास को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, नाउ what kind of cheetah? So there are two types of cheetah, एक है एशियन चीता, एक अफ्रीकन चीता। इंडिया में हमने किसको रीइंट्रोड्यूस करा? सो ऑल्दो इंडिया एशिया में आता है और इंडिया में पहले एशियन चीता होते थे, बट 1952 में, सो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने जो चीतास थे उनको हंट कर दिया था आउट ऑफ एक्सटिंक्शन। वी हंटेड चीतास आउट ऑफ टू एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो ये चीज जो बोलते हैं हंटेड टू एक्सटिंक्शन। तो एशियन चीता थे उनको हमने एक्सटिंक्ट कर दिया था इन द ईयर 1952, एंड उसके बाद से इंडिया में एशियन चीता नहीं मिलते हैं। एशियन चीता सिर्फ एक ही कंट्री में फाउंड होते हैं और वो है कंट्री ऑफ ईरान, और ईरान के अंदर में ये फाउंड होते हैं, और ईरान के अंदर में दीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आपके, ये जो आपके चीतास हैं ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ईरान ने अभी जो लेटेस्ट उसके पास सेंसस है उसके हिसाब से देयर आर ओनली 12 एशियन चीतास लेफ्ट इन द वाइल्ड। so you know how precarious this position is। okay, so I use these words, these English words deliberately so that you also learn these words। ठीक है, precarious पोजीशन में आ चुके हैं। ओके, ओनली 12 आर लेफ्ट, बट इंडिया में हम इसको रीइंट्रोड्यूस इसलिए नहीं कर पाए थे बिकॉज इनकी पॉपुलेशन वाज वेरी लेस। तो हमने बाकी कंट्री से, अफ्रीकन कंट्री से करा, और अफ्रीकन कंट्रीज स्पेसिफिकली योर नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, दे वर रेडी फॉर दिस चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, एंड फाइनली वी आर रीपेइंग देयर फेथ इन अस कि हम उसको वापस से रिकवर कर पा रहे हैं। तो जो IUCN स्टेटस है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका जो स्टेटस है इट इज वल्नरेबल। ओके, तो एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि इसका IUCN स्टेटस जो चीता का है वो वल्नरेबल है, टाइगर का IUCN स्टेटस क्या है? तो मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि IUCN स्टेटस ऑफ टाइगर क्या है। ओके, और अफ्रीकन चीता का स्टेटस वल्नरेबल है। सो यस, ये भी प्रोडक्शन, इनका भी जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो रहा है। तो अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो शायद क्रिटिकली इंडेंजर हो जाए, फिर शायद एक्सटिंक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये है रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, फाइनली द लास्ट न्यूज। यहाँ पे मोहम्मद यूनुस जो अभी वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं, उनका स्टेट आया है कि हमें सार्क की स्पिरिट को यहाँ पे रिवाइव करने की रिक्वायरमेंट है, जो रीजनल प्रॉब्लम से हमें छुटकारा दिला सके। और यहाँ पे सार्क के लिए नहीं बोल रहे हैं, सार्क स्पिरिट को बोल रहे हैं। सार्क स्पिरिट बेच है आपके पंचशील प्रिंसिपल पे, पंचशील प्रिंसिपल पे। सो दीज पंचशील प्रिंसिपल वर गिवन बाय नेहरू ओनली।
इंडिया चाइना के बीच में रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए हम पंचशील आपके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको हम यहाँ पे करते हैं। सो अगेन कमेंट बॉक्स में आपको मुझे पंचशील के कौन से 5 प्रिंसिपल है, 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, इफ यू नो दोस यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। एंड इसके अलावा कुछ भी इंटरेस्टिंग आप पंचशील में बताना चाहे तो बता सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट आल्सो, ओके। सो दिस इज योर पंचशील। तो अब सार्क आपका 2-3 बार आ चुका है न्यूज़ में, तो एक बार का हम इसके बेसिक्स को गो थ्रू करेंगे। तो सार्क का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए बिकॉज़ दे कैन सिंपली आस्क यू द फुल फॉर्म। तो साउथ सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, बट दिस सार्क हैज बीन अ फेलियर टू डू इट्स मेन जॉब। तो इसका मेन काम क्या था कि हम यहाँ पे एक रीजनल रीजनल फोरम क्रिएट करना चाहते थे, रीजनल इंटीग्रेशन करना चाहते थे, जैसे यूरोपियन यूनियन ने अपना वहां पे इंटीग्रेशन करा है, सेम वाज द आइडिया ऑफ सार्क ऑल्सो कि जो साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स साउथ एशियन कंट्रीज हैं इसमें भी हम एक एसोसिएशन क्रिएट करेंगे। तो सार्क जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो प्रमोट करती है ग्रोथ ऑफ रीजनल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और 2016 जब से इंडिया पाकिस्तान के बीच में आपका पठानकोट अटैक हुआ है, तब से इट्स इन डेडलॉक बिकॉज जो 2016 की समिट इट वाज सार्क समिट, इट वाज सपोज्ड टू हैपन इन इन इस्लामाबाद एंड 2016 में इस्लामाबाद में इंडिया ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया, बिकॉज ऑफ दिस इट वाज कैंसिल्ड, ओके। इसके बाद हम कुछ बेसिक्स पे आते हैं। तो सार्क चार्टर जिसने सार्क को क्रिएट किया है, इसको रेटिफाई किया था हमने 1985 में। बिकॉज ऑफ दिस स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या हो जाएगा इसका, तो स्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1985। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सो इसका हेडक्वार्टर आपका है काठमांडू के अंदर में, नेपाल। रिमेंबर दिस रेटिफिकेशन ढाका में, उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे इसका हेडक्वार्टर होगा, इसका जो हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट है वो काठमांडू नेपाल के अंदर में है, ओके। बट इसको क्रिएट किया हमने ऑन December 8, 1985, ओके। व्हाट आर द 8 कंट्रीज ऑफ सार्क, तो 8 कंट्रीज के नाम मैंने यहाँ लिख रखे हैं। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दिस निमोनिक टू रिमेंबर दिस नेम। सो एमबीबीएस डॉक्टर आपको पेन करता है तो एमबीबीएस पेन से यू कैन रिमेंबर दिस 8 कंट्री। इसके अलावा देयर आर 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स आल्सो, सो दीज 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स आर मेंशन्ड हियर। तो ये 9 ऑब्जर्वर्स हैं, जस्ट हैव अ रीड ऑफ इट, ओके। इसके बाद ज्यादा न्यूज में आना स्टार्ट हो जाए तो आपको ये 9 ऑब्जर्वर्स याद भी करने पड़ेंगे, बट यस यू कैन रिमेंबर दिस 8 सार्क कंट्रीज। इसके अलावा हिस्ट्री क्या है, तो इट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ जिया उर रहमान। तो ये आपके फॉरवर्ड बांग्लादेश प्रेसिडेंट थे 1985 में, एंड ही वाज द वन हु रिकमेंडेड दिस पर्टिकुलर सार्क ऑपरेशन, सार्क ऑर्गेनाइजेशन। और जिया उर रहमान का ही ब्रेन चाइल्ड था ये। इसके बाद एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है विच इज योर सार्क काउंसिल, जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है आपकी सार्क की। तो सारे जो मेन डिसीजंस होते हैं सार्क के, इट इज टेकन बाय द सार्क काउंसिल ओनली, ओके। सो दिस इज द सार्क काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ, okay students। So students, with this we are done for today. So these were the important news headlines from your Hindu and Indian Express, and that's it from my side. I hope to see you in the next class with a new set of news from that day, and thank you and have a very nice day.